HelpLife Pune has been in existence since 1999, and we have been working with the physically challenged young adolescent girls. And now, considering that COVID is on, we are concentrating more on an online platform and reaching out to them. We have been working in the state of Maharashtra up to now, but now we would like to reach out to a larger area, as in all India, in whatever terms we can, and help the really needy and deserving challenged people. So, madam, my first question to you is: Do you have an online platform by which you are able to give training to these differently abled young girls? Yes, we have. We're using Zoom and Google Meet. Perfect. We are also planning to use Super Pro AI, which has been developed by Indian IITians. So that is, I mean, we're using the normal online platforms. Sure. And after these girls are trained, what is the next steps you take for them? We are also looking at livelihood. We work not only in education, but we are also into community-based rehabilitation, where we try and give microfinancing to ladies and gents, both both the genders, and we monitor them and help them to set up whatever they would like to do. Sure. And you are tied up with any of the microfinancing institutions like Suryodaya or any of the or Ujjivan or AU financiers? Are you tied up with any of the bankers No, directly? currently we are doing this on our own, So, but we are open to looking at partnerships. right. And you have been providing finance from your own balance sheet? Yes, from our own funding. Okay. So my request here would be to, so there are three things which you should be doing for the helpline Pune's growth. It's Help Life. Helpline, sorry, yeah. Life, Right. yeah. Sorry, my mistake. Sorry. Yeah. So the first thing you should do is you should have combined balance sheets. What does that mean? It basically means a portion of the money which you are disbursing. So let's assume you are disbursing 50,000 rupees. So take an exposure of 10,000 on your own balance sheet. Rest of the 40,000, take it from the other financiers who are in the microfinance unit. Now, how do you get in connect with them? All these guys are present online. You can write to the CEOs. They are looking for people who can reach out to the beneficiaries or the potential customers. So there are RBI has given 12 small banks license to microfinance units. Some of them include Suryodaya Bank, Janlakshmi Financials. What I'm going to do is I will send you. Are you there on the WhatsApp group? Yes. So I will send you the list of all the 12 banks which specifically cater to the microfinance units, including Okay. Bandhan Bank, and they have pan-India presence. So what you should do is for Help Life, you should take exposure, as I mentioned, 20 or 30% on your balance sheet. Balance, you should have credit risk policies of the combined entity so that it will give you scale, because your balance sheet is always going to be finite. So that's number one you should do. Second is, currently you said you are only working in Maharashtra. Pick up a state where you believe your thesis or your research says that young girls who are differently abled need supporting hand in terms of entrepreneurship, in terms of independence, in terms of livelihood creation, because you are largely, as I am understanding, you are largely
catering to self-employment rather than getting into the corporate sector, right? So, Right. so you should look for the states where the education level is reasonably okay. So I would suggest look at Orissa. Now I don't know whether, because you may have to travel quite a bit. So you can look at West Bengal as a state. You can look at Orissa as a state, and you can look at Jharkhand as a state. These three states, they are largely underbanked. People do not get financing easily. Your expertise will help there. That's number one. Number two, in all these three states, if you look at, women actually do more work than men, both these three states. So women have, although they are backward in terms of their progress, but from the work perspective, from the contribution to the household income perspective, these these three states, women are far progressive. So you should look at enabling them even further. So that's number two. So Orissa, West Bengal, and Jharkhand. Depending on your preference, you can opt for one state at a time. So that's number two you should look at. Number three, how to go about it. When you will tie up with any of these guys. So for example, Suryodaya has expertise in Maharashtra. They give microfinance in entire Maharashtra, Tamil Nadu, and I think Jharkhand. So three states, right? Similarly, AU financiers have exposure in Uttar Pradesh. So what you will get to know, these partners themselves will introduce you to the local guys there, because you have to go and work at the grassroots level. Their network is already set. So they will reach out to the beneficiaries where you can participate with them. So it will be a collaborative approach where you are giving them from Maharashtra and they will help you with another state. So that's the collaborative approach you should follow. Last, you should try and test whether your online training modules can work. So I don't know which language you are using. Since you're in Maharashtra, I'm sure you are using Marathi. Whilst We're using Hindi Acha, because most of our resource people are, and everybody understands Hindi generally. So we use Hindi as a medium of communication. wonderful. So then, in that sense, Hindi is a universal language. So whether it is Jharkhand, whether it is Orissa, or whether it is West Bengal, most people will be comfortable talking in that language. So that's a low hanging fruit. Also, what you should do is, since you are doing this good work, start collecting testimonials on a. So I'm sure you already have a website. I'm assuming that. Yeah. Remember that in any aid, there are two people involved, or in any transaction there are two people involved: people who supply and people who are creating demand, right? Right. You are a platform of assistance, right? So what you need to do is get the testimonials from both the sides. So take some of the beneficiaries who have become independent thanks to Help Life Pune, get their videos, get their written in Hindi or in their vernacular language, take their testimonials, put it on the website, put it on your Facebook page. Also create a LinkedIn page of yours if you have not already created. We are present on Facebook and LinkedIn, and we keep posting all the events and things happening. Wonderful. Yeah. So get on the Twitter as well, because Twitter also has a reasonable reach. So Twitter and Instagram also, you should go on that front and keep posting those testimonials via your website on the post. So what you should do, your landing page should always be available to be seen by anyone who's clicking there. What does that mean? Let's assume, since it will be a video,
I'm sure your website doesn't have the storage capacity, so you will host it on the YouTube. You will host the testimonials on the YouTube. That link should be on your web page or on your website. Right. That link should be posted on the Facebook, LinkedIn, Twitter, wherever. And then when anybody will come on the Facebook page of yours, they will click on the link, they will go on your website, and then they will be able to see. So what it does, it creates more visibility for Help Life Pune. We already have a few clippings Correct. on our website, but I think we need to link the website and the social media pages. Correct. So that's the point. Everything Right. should be routed through your website so that people have more footfalls, more eyeballs come on your website via the social media pages. So the idea is to drive the traffic on your website. And one more request, where whenever you're doing any event, so let's assume today you are present here, right? You learned a few things. You can click a picture of this video when we are talking, and you can say that Help Life Pune interacted with Idea. Post that picture, write 2 lines about it, and put it on the website. What it will do, content upgradation automatically will attract more users, more beneficiaries. Otherwise, what happens is generally website updation is like 1 month or 1 quarter job, right? After a quarter, you will do something and then it's static. Right. My request is you don't have to be so prim and proper. The idea is communication, and hence, so as we are speaking, if you from your laptop, just click the picture of this entire page itself and post it on your website, post it on your Facebook. Write that Help Life Pune now thinks pan India presence, or is now thinking of reaching to the eastern states, and we had a good interaction with Idea team. That's it. Right. So it will, any activity, and I'm sure you are So doing. we keep having posts and we keep doing it. Correct. We keep posting it on Facebook, on our Facebook and our LinkedIn page. Perfect. That we're doing continuously. Great. So the simplest way, next steps for Help Life Pune is, you should get in touch. So I will send you the link of those 12 banks. So you would send it on this on the Sarthak WhatsApp group? On the idea WhatsApp group, which Rajat has created. Rajat, I think I am only on the Sarthak. I saw this on the Sarthak group and I joined from there. Okay, so in any which case, I will forward. Otherwise, Rajat can share your number and I will forward it directly to you. Sure. EWS, economically weaker section of the society. So like Mudra loans. So you can avail of a Mudra loan up to 1 lakh or up to 2 lakhs without any guarantee, without any collateral. And government gives discount depending on your category in the interest from 15% to 40% discount, which means the interest is reduced. So you should also tell the beneficiaries about these schemes, so that dependence on Help Life Pune even reduces further. I'm sure you have already done for all your beneficiaries Jan Dhan account, so that they get the life cover of 2 lakhs free of cost from the government of India. It only costs 1 rupee per month, so 12 rupees per year, and you get a life insurance of 2 lakh rupees and medical insurance of 50,000. So what you should do is, all your beneficiaries or all the girls, you should open a bank account instantly as they come in your foray. That we do.
They all have bank account. Perfect. Immediately, and they should be Jan Dhan bank account and get them this Mediclaim as well as life insurance, which is free Okay. of cost. And they should fill the nominee of their parents. Nominee means the person in case of an eventuality, the Right. person who will get the money. So they should put that also, that form, and they should scan that form and keep it somewhere safe because physical papers tend to get lost. So that's what you should do. If there is any other question, I'm happy to answer or explain. I don't have any questions as such. Thank you so much. श्याम गायकवाड है। हाँ, नमस्ते श्याम जी। हाँ, दिव्यांग क्रांति ज्योत विकास संस्था पालघर से, बोईसर पालघर। जी 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 सर, आपसे 2-4 बार मुलाकात में हो गई है सर इसके ऊपर। जी। सर कुछ नहीं, अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं चल रहा है, आपका सब सुन रहा हूँ, अभी ठीक चल रहा है सब। बहुत अच्छे गायकवाड़ साहब, आपको हमारी तरफ से कुछ भी चाहिए, हम तत्पर रहेंगे। आपके दिव्यांग बच्चों को कुछ भी चाहिए, हम लोग हमेशा प्रयत्न करेंगे कि उनको बेनिफिट मिले। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो बताइए रमेश प्रधान जी, हम कुछ आपकी मदद कर सकते हैं? सर, हमने तो अभी 2 साल हुआ मेरा एक गुरु प्रसाद वेलफेयर फाउंडेशन पूरी उड़ीसा से कुछ दिव्यांग बच्चे लोग के लिए और कुछ जो एजेड लोग है, जो औरत लोग है, बच्चे लोग है, जो जवान है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग मदद ये कर रहा है, कोशिश कर रहा है जो कुछ मदद मिले उनको। और उड़ीसा में ऐसा कुछ है नहीं जो स्कूल है आसपास में या कुछ है जो पढ़ा सके, किसी को कुछ ये कर सके। एक जिला में एक स्कूल है, वो भी उसमें कुछ सुविधा नहीं है जाने के लिए, मतलब 1.5 साल से कोविड की वजह से बंद है स्कूल। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा कोई एक स्कूल पूरी सिटी या नियर अबाउट पूरी के आसपास कहीं कुछ मदद मिले, किधर से कुछ होए। तो बहुत सारा बच्चे जो है इसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आगे का फ्यूचर ही खत्म हो जाता है। रमेश प्रधान जी, मुझे एक चीज बताइए, आप बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी नहीं होगी? एक जगह का नहीं है, तो मेरा घर का पास है ना, सिर्फ ज्यादा बच्चे नहीं है, 10-20 बच्चे होंगे। हाँ, तो मैं ऐसा ये कर रहा था, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक ही स्कूल है, लेवल स्कूल। हाँ, वो स्कूल भी बंद है 2 साल से। तो बच्चे का क्या हाल है, एक तो जो स्कूल तक ले जाए और स्कूल भी बंद है। तो ऐसा हम लोगों को कोशिश कर रहा था, कुछ ऑनलाइन सिस्टम में हो सकता है इनको पढ़ा जाए या कुछ मदद मिल सके। जो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। हाँ, एक है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, विप्रो कंपनी है, विप्रो आई नो फाउंडेशन है, वो भी पूरे देश में सारे पिछड़े जगहों पे स्कूल बिठा रहे हैं जी। तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप कीजिए, मेरा नंबर मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूं। आप मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको HCL फाउंडेशन के जो सीनियर लोग हैं उनका नंबर और ईमेल एड्रेस देता हूं। अच्छा, आप उनको लिखिए, अगर आप उनको कन्विंस कर पाएंगे तो वो आपके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देंगे। ठीक है सर, तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए क्योंकि काफी पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें कोई अगर पूरी फाउंडेशन अगर ये इन्वॉल्व हो तो बेटर रहेगा। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, आप जी मैं व्हाट्सएप आपको ये करता हूँ। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिएगा कृपया करके, सो दैट मुझे हाँ, मैं लिख देता हूँ। तो ये मैंने आप सबको भेज दिया है, तो नंबर अगर आप लोग को सेव करना है तो आप करके, मैं आपको अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जी और ये कोशिश करके इसका HCL फाउंडेशन के कॉन्टैक्ट्स आपको फॉरवर्ड करता हूँ। आप उनसे मदद मांगनी पड़ेगी, लेटर, ईमेल, फोन, जो भी हो, जो भी बल पड़े आपको करना पड़ेगा। जी पाएगा।
वरना अगर आपके पास थोड़ा भी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से, और ऑनलाइन अगर करना है तो वो बाकी मैं सब बता सकता हूँ आपको। तो आप पहले एक बार ये कीजिए, अगर ये नहीं होता है तो फिर हम दूसरा कुछ प्लान करेंगे, लेकिन आप हार मत मानिएगा, हमें करना है ये बच्चों के लिए। ठीक है सर, मैं तो हार नहीं, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, मेरा खुद का घर ना। हाँ, मेरा मतलब 3-4 रूम जो है बड़े बड़े वो खाली पड़ा है, लेकिन मेरा उधर ना कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा बाकी लोगों के लिए। हाँ, तो इसके लिए वरना आप एक काम कीजिए ना, सुनिए हाँ सुनिए रमेश, जी, आप कम से कम एक स्कूल से जितना भी बच्चा आ सकता है, बड़ा बच्चा, हाँ हाँ वहां से शुरू तो कीजिए। हाँ, शुरू तो मैं मेरा एरिया का मैं कर सकता हूँ, मतलब 10-12 गांव का। तो मैं बोल रहा हूं आप शुरू तो कीजिए, क्योंकि रमेश जी देखिए क्या होता है, हाँ जिंदगी में कभी भी ना पूरा जी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं होता। ठीक है। हम शुरुआत करते हैं, जब जब सार्थक हमने शुरू किया था तो हमको पता भी नहीं था कि कैसे क्या करना है। हाँ हमें बस पता था कि दिव्यांग जनों को सेवा करनी है बस। तो हमने एक बड़े हमारे महानुभाव हैं, उन्होंने उनका जो गैराज है वो हमको दे दिया था, जी, वहां से अपना शुरू कीजिए। तो वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे आते थे ना, जिनको हल्का सा हैंड मूवमेंट में तकलीफ होती थी, आई मूवमेंट में होती थी, तो अर्ली इंटरवेंशन से हमने शुरू किया था। जी, तो फिर बढ़ते 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 आज 30,000 से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा है। जी, जी। तो शुरू कीजिए, बाकी ईश्वर है। और आप तो जगन्नाथपुरी में है, नारायण तो सब। सर, अच्छा है पूरी धाम है, लेकिन नहीं, मैं समझ गया, हाँ हाँ, मैं समझ गया। तो काम आप, तो अच्छा है। हाँ, हाँ, काम बोलो तो बहुत अच्छा है, धाम भी अच्छा है, काम भी इतना अच्छा है। तो शुरू कीजिए। लेकिन सर, मैंने तो बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे कुछ लोगों को जो मतलब थोड़ा गरीब रेखा का नीचे है, जो जिनके पास है ही नहीं कुछ। हम कोशिश कर रहा था किसी को कुछ एंड्रॉइड फोन दे सके, किसी लोगों को, कुछ लोगों को कुछ इंटरनेट का सुविधा कर सके। कोई क्लासरूम हमने हमने अभी एक सरकारी स्कूल अभी बंद होने का कगार पे, वो स्कूल से भी बात किया था, जो तुम्हारा ये छोड़ दो, इधर एक इंटरनेट ये वाईफाई कुछ लगा देते, कुछ बच्चे लोग को लाके इधर पढ़ाने का सुविधा करते। तो वो भी परमिशन नहीं मिला कोविड की वजह से, 1-1.5 साल से वो भी बंद है। तो अभी करे क्या, अभी तो हमारे पास इतना फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं है जो मैं खुद करके ये सब गाड़ी वाड़ी बंदोबस्त कर सकूं। तो मैंने बहुत सारा लोगों को बताया भी है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया, मेरे को रिपोर्ट कुछ नहीं है। नहीं रमेश, मैं वही कह रहा हूँ, सबसे पहला जी, काम कीजिए, आसपास के जितने भी, आसपास के, दूर के नहीं, हम्म, एक छोटा छोटा काम करेंगे। सबसे छोटा काम क्या करेंगे, आपके जो 1 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में जहां पे बच्चे चल करके आ सकते हैं, हाँ अपने घर में आप पाठशाला खोलिए 3 घंटे की, बस 3 घंटे हाँ, बस। और उसमें पहले 4 बच्चे आएंगे, फिर 10 बच्चे आएंगे, फिर 20 बच्चे आएंगे, वहां से शुरू करते हैं। जी, 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 तो आप ये ना, सिर्फ 4 बच्चों से 5 बच्चों से हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन 3 घंटे बस शुरू वहां से कीजिए, बाकी देखते हैं आगे। हाँ। मैं ऑलरेडी वही मतलब अभी हमारा जो गांव है उसमें 4 बच्चे हैं सिर्फ। अच्छा। हाँ, 4 मतलब वो डिजेबल है, चल नहीं पा रहे, ये 2 आदमी, 2 लड़के चल नहीं पाते, और दोनों का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का हाथ का प्रॉब्लम है, एक हाथ मतलब काम नहीं करता है, और एक का कुछ सुन नहीं पाता है ऐसा। हाँ, तो हमने कोशिश किया, अभी जो आंगनबाड़ी का टीचर रहते, तो उनकी जरिए से कुछ शुरू करने के लिए तो हमने किया था। फिर अभी 2-3 महीना चलने के बाद फिर कोविड का फिर लॉकडाउन हो गया। फिर वही हाल है, जैसे ये कर रहा था, पहले जैसे हो रहा था। तो ठीक है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा मदद करिए मेरे को, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ जो 8-10 गांव का बच्चे को कलेक्ट करने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके, एक एक दो दो गांव से, एक एक गांव से 2-2 3-3 बच्चे आने जैसे आ सके हमारा उधर।
तो देखते हैं अभी क्या हो रहा है सर। अभी तो मैं 2 साल से वही लड़ाई लड़ रहा हूँ। और एक चीज है सर, मैं कुछ बच्चे लोग के लिए मतलब उनके फैमिली के लिए जो थोड़ा गरीब है, जो उसकी फैमिली जिसमें डेली वेजेस में थे, काम बंद हो गया उनको, तो शहर में रिक्शा रिक्शा चलाते थे उनकी फैमिली, तो उनको भी कुछ रेशन वेशन टेक महिंद्रा का तरफ से भी मिला, गुंज का तरफ से भी मैंने करवाया। और एक फीडिंग इंडिया बोल के एक कंपनी है, उनकी तरफ से भी कुछ करवाया। मतलब किया मैंने बहुत सारे लोगों को। मतलब हमारा पंचायत का 10-15 गांव है, तो उनका भी हुआ, दूसरे एरिया का भी किया, बहुत सारा ये किया, लोगों को कुछ मदद दिया। और भी मैंने आपको भी बीच में रजत जी की बात हुआ था शायद, मेरा वो इसके बारे में थोड़ा सा रेशन वेशन थोड़ा सा कुछ खाने का सामान मिल जाए तो लोगों को जो गरीब है, तो वो भी अच्छा होता था थोड़ा। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ये रमेश जी की ये गवर्नमेंट हर महीने चावल और चना देती है, या गेहूं, चावल चना और गेहूं देती है। गेहूं चावल, हाँ। वो नहीं मिल रहा है उन लोगों को। सर हमारा इधर प्रॉब्लम क्या है ना, जिसका रेशन कार्ड होना चाहिए तो उसका नहीं है। हमारा ये पूरा नंबर 1 सीट मतलब स्टेट है इंडिया का, जिसका होना चाहिए था आधार कार्ड उसका नहीं है, जिसका रेशन कार्ड चाहिए उसका नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। और जो भी ये जो जिसको भी मिलता है, हमारा इधर एक उड़ीसा का एक अलग से रेशन कार्ड है, 2 किलो या 3 किलो चावल सिर्फ मिलता है, गेहूं नहीं मिलता है। हाँ, ये थोड़ा अलग ही है, मतलब पॉलिसी फॉरेन का है, लेकिन हमारे इंडियन थ्योरी है। हमारे अभी तक हमारा चीफ मिनिस्टर हमारा स्टेट में देखेंगे तो इंडिया का नंबर 1 चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है सर। हर किलोमीटर में ना 10-12 पोस्टर मिलेगा आपको। इंडिया का नंबर 1 चीफ मिनिस्टर सर। तो क्या करें, अभी कुछ ही नहीं कर सकते ना, उनके सामने गाया ही नहीं सकता हूँ ये गाना। आप एक काम कीजिए, कम से कम आधार तो अब ऑनलाइन हो गया है, और आधार तो है, वो कर दिया मैंने सबका, जिसका जिसका था ये आधार मैंने उन लोग को लेके कलेक्टर ऑफिस में जो जहां जहां भी था वो सब करवा दिया। तो आधार की बेसिस पे उनको जो सेंटर का राशन मिल रहा है मिलेगा। ना ना नहीं मिल रहा है सर, इसके लिए हमने 1 साल हो गया ये लड़ाई। अच्छा, एक काम कीजिए, जितने भी आपके लाभार्थी हैं, जितने भी आपके बेनिफिशियरीज हैं, उनका उनका जो है एक लेटर लिख करके पीएमओ को डायरेक्टली डालिए, एक लेटर डालिए डायरेक्टली पीएमओ को। हाँ, वो तो पीएम को कर सकता है, ट्वीट भी कर सकता है ना। नहीं, ट्वीट से वो सब पे होगा नहीं, एक लेटर लिख करके बकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज सकता हूँ, जिनके नाम है और उनके आधार कार्ड नंबर, जी जी जी, एक लेटर डालेंगे, इमीडिएटली कार्रवाई होगी। सर मैंने एक बार चीफ मिनिस्टर को लिखा था ये चीज, हमारा जो 15-20 फैमिली है जो रेशन कार्ड से वंचित है, एक्चुअली उसमें से 4 लोग है जो होमलेस है, घर नहीं है। हाँ, वो लोग को रहते थे फुटपाथ पे, अभी रहने नहीं देता है शहर में, तो वो लोग गांव पे झाड़ का नीचे मतलब एक त्रिपाल लगा के रह रहे। तो वो सब दिखाया मैंने, फोटो भी भेजा था अभी कुछ लोगों को मैं। तो उसमें क्या हुआ, वो उसमें मेरे को थ्रेड भी करने लगे। तो ठीक है, वो कुछ लोगों का तो एप्लीकेशन वो रिसीव किए, हाँ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कुछ लोगों का नहीं किया, अभी तक तो किया नहीं, कर देगा बोला, कर देगा मतलब 1 साल हो गया वो। नहीं, आप ये लेटर लिखिए पीएमओ को, डायरेक्टली पीएमओ को लिखिए, और वो इमीडिएटली वो डीएम को भेजेंगे। हाँ, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, ये डीएम का काम है, वो के पास जाएगा, वो हरकत में आएगा। और अगर नहीं आएगा ना, तो सुनिए, आप उनको लेटर भेजिए पहले, एक स्पीड पोस्ट 25-30 का स्पीड पोस्ट का खर्चा है, उसका फोटो कॉपी अपने पास रखिएगा। अगर एक 15 या 20 दिन के बाद आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है, फिर ट्वीट कीजिए, कॉपी में रख करके पीएमओ को। हाँ, आपको 1 महीने के अंदर काम होगा, 1 महीने के अंदर। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ फिर कल
मतलब ये मंडे को मैं भेज सकता हूँ। हाँ तो लेकिन पूरा कहानी लिखिएगा, पूरा उसमें हाँ, पूरा कहानी में लिखता हूँ। हाँ, और उसमें एक्चुअली क्या हुआ ना, अभी मैंने पूरा नाम और मतलब आधार कार्ड का नंबर, वो गलती हाँ नहीं हाँ हाँ, नाम, आधार कार्ड और डिजावेल का सर्टिफिकेट भी है सबकी। बस बस बस। हाँ, तो रजत एक और चीज, आपको कोई जानकारी है? डिसेबल्ड को पेंशन भी देती है गवर्नमेंट, राइट? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डिसेबल्ड को पेंशन देती है गवर्नमेंट, उसके बारे में बताएंगे एक मिनट? क्या सर मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या, परमिशन देंगे तो इनके बारे में मैं? प्लीज 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 बोलिए ओम जरूर प्रकाश। जरूर। सर पेंशन पेंशन सर देती है स्टेट गवर्नमेंट, सब स्टेट का रूल अलग अलग सर। यहाँ पर जो हम लोग का रूल है 400 रुपया देती है, उड़ीसा गवर्नमेंट भी 400 रुपया देती है। तो पेंशन के सर सिंपल सा रूल है, उसमें जो आपका विकलांगता सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, आपका अकाउंट डिटेल होना चाहिए और आधार कार्ड, और जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का वोटर आईडी और आवासीय। सर अप्लाई करने के बाद 21 दिन के अंदर में पेंशन सेक्शन हो जाती है सर, दिव्यांग बच्चों को किसी भी स्टेट के लिए सर। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत ये बढ़िया। बिल्कुल ये हर तो स्टेट का सर अपना रेट है, इसमें आप अपना पेंशन रेट तो आई पता थिंक कर सकते हैं पेंशन डिसेबिलिटी कुछ लोगों का कमिश्नर है। से। हाँ। मतलब हमारा बच्चे लोग का नहीं है, लेकिन बाकी लोगों का जो थोड़ा एजेड है उनका पेंशन आता है। हाँ तो नहीं सर सबको आना है इसमें, सर, ये ये सबके का सर लिए कोई है सर। रिक्वायरमेंट। ये डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में जानना पड़ेगा आपको, वहाँ के जो कमिश्नर होंगे वहाँ को जाके वो लगाना पड़ेगा अपना अर्जी। और इसका हर स्टेट का, जैसे इन्होंने कहा 400 रुपए, जैसे दिल्ली का 2000 रुपए है, तो इस तरह से हर स्टेट की अपनी पेंशन फिक्स है हर डिसेबल्ड के लिए, अगर उनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है साल का और सर्टिफिकेट उनके पास है, डिसेबिलिटी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, तो वो देना ही देना है, मिलता ही है वो पेंशन। रमेश जी, आप ये थोड़ा सा ये काम करवा लीजिए, क्योंकि ये जो पेंशन है जी साल की 6,000 7,000 रुपया, ये तो जी। कम से कम आना ही चाहिए ना सारे बच्चों को। हाँ, वो तो मिलना चाहिए। एक्चुअली बच्चे लोग को नहीं मिल रहा है। मैं बीच में भी इसके बारे में भी बहुत ये किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाकी तो मैंने फॉर्म वॉर्म डीएम ऑफिस में मैंने कुछ लोगों का भेजा था, कुछ बच्चे लोग का। हाँ, तो हमारा इधर एक डिजेबल का एक ये है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बच्चे लोग को आइडेंटिफाई करता है फॉर द पेंशन या अदर कुछ बेनिफिशियरी के लिए। तो उनसे भी मैंने बात किया था, तो उनका भी कुछ पता नहीं। अभी तो कोविड की वजह से मैंने बीच में बात किया था गया महीना, तो बोले हमारा कोविड की वजह से सब फंक्शन बंद है, अभी हम लोग एक्टिव नहीं कर रहा है कोई चीज। थोड़ा खत्म होने का बाद, थोड़ा नॉर्मल होने का बाद करेंगे। ठीक है, उनसे भी मैं भी डीएम ऑफिस से मैं बात कर सकता बात हूँ। कीजिए, क्योंकि ये सरकार है, हाँ इसमें आप कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए गायकवाड़ साहब। सर हमारे महाराष्ट्र में 1,000 रुपए मिलता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत। और सर बच्चे का है ना 18 साल के ऊपर मिलता है पेंशन सर। अच्छा, 18 साल के ऊपर उनको पेंशन मिलता है। और समाज हमारा भी वही है सर। बच्चे लोग को 10,000 रुपए मिलते हैं साल में एक बार। सॉरी दूसरा बताइए एक बार गायकवाड़ जी, आपने 10,000 क्या बोला? समाज कल्याण रहता है ना, वो अप्लाई कराएंगे ना तो आपको 10,000 मिलता है साल में बच्चे के लिए। अच्छा, बच्चे के लिए। हाँ अच्छा, तो ये रमेश जी, ये इसका प्रावधान उड़ीसा में भी होगा, क्योंकि ये सब जगह है। सब जगह, हाँ बताइए। सब जगह है सर ये। जी हम ट्राई कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हर स्टेट की स्कीम्स जो होती है ना अलग अलग होती है। हाँ, तो इसमें आपको अगर ज्यादा डिटेल चाहिए, हमारा कैप सारथी ऐप है जो अभी हमने बनाया, उसके हर चीज दिया है, हर चीज है उसमें, हर स्टेट का कौन सी स्कीम है, किस चीज के लिए है। अगर आप उसको डाउनलोड कर लें, वो बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाता है, फ्री है वो बिल्कुल। उसमें अपनी स्टेट आप सेलेक्ट करके अपनी सारी वो देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स आपके दिव्यांगों के लिए अवेलेबल है। तो आप उसको जरूर देख लीजिए एक बार, और अगर उसमें नहीं आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं, और आपके सब उसको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस पर, किससे मिलना है, क्या मैं पॉइंट एक ऑफ बार कॉन्टेक्ट। वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर देता हूँ। कैप सारथी ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल स्टोर में आराम से मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो डाउनलोड। मैंने बीच में अभी गया महीना शायद हमने एक बार वही सेशन में आप बताए थे। जी जी मैंने
मैंने एक्चुअली डाउनलोड किया है कि नहीं किया, मैं देखना पड़ेगा। मेरा मोबाइल एक्चुअली स्विच ऑफ हो गया वो, हाँ, बैटरी की वजह से। हर स्टेट की हिसाब से इंफॉर्मेशन डाला गया है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। ओके, ठीक है, फिर तो अच्छा है। देख लेता हूँ मैं एक बार। और सर, मैं सर सिद्धार्थ सर, मैं आपको एक व्हाट्सअप करता हूँ, बाकी का मेरे को थोड़ा सा हेल्प करिए। ठीक है। और हेल्पलाइन पुणे में जो मैडम है, आप भी आपके जो बेनिफिशियरीज हैं जी। उनको उनको अगर पेंशन नहीं या इस तरीके का ग्रांट नहीं मिल रहा है, तो आप भी, जैसा गायकवाड़ जी ने बताया कि 1,000 रुपए मिलते हैं सारे दिव्यांग जनों को, और 10,000 रुपए दिव्यांग बच्चों को साल का, वो भी, उस पे भी आप भी अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि आपके बेनिफिशियरीज भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो आप प्लीज उस पे उनको हेल्प कर सकती हैं। सर एक्चुअली मैं बिहार में मैं आसानी से बच्चों को करा दिया हूँ। अभी तक मैं 200-300 दिव्यांग बच्चों को मैंने पेंशन दिलवा दिया हूँ, राशन कार्ड भी बनवा दिया हूँ सर। यहाँ पर इजीली हो जाता है सर। नहीं, बाकी यस सर, स्टेट में इजीली हो जाता है, वेस्ट बंगाल यस में सर। भी एक्चुअली सर यहाँ पर बेनिफिट है ना कि मेरे पास लैपटॉप है, तो मैं उनको घर घर जाके मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। ऑनलाइन करने के बाद मैं उसका स्टेटस चेक करते रहता हूँ। जैसे उसका पैसा आता है तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपका पैसा आ गया है, आप जाके निकालिए और यूज करिए और पढ़ाई में अपना इन्वेस्ट करिए पैसा। बहुत बढ़िया ओम प्रकाश, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर सर जिनका दिव्यांग बच्चों को मैं राशन कार्ड बनवाया उनको Kranti, I'm the secretary of Bresh School, which is in Bhadrachalam. Bresh stands for Bhadrachalam Rehabilitation and Education Society for the Handicapped. And then we have school from 5 to 18 years, where we have children with all disabilities, deaf, dumb, intellectually disabled, and physically challenged. We also take partially blind and multiple disabled children also, and orthopedically handicapped also. So we have been working in this area for the last 30 years, and it's been nice to work with Sarthak ever since its inception. And we've got a chance to meet your director also when you had conducted the education at the Microsoft workshop at Hyderabad along with Sarthak. So the team from Sarthak had actually visited our school and seen before the workshop. We will to get informed Microsoft workshop. So we had a few interactions with the team ever since then, and then we've been working actively in the area of education, rehabilitation, development, overall development for the children, and we have the central government aid, and we were helping in getting the children the best that they can. So that's wonderful news, and the work you are doing is brilliant, Kranti. Yeah, I'm sure you're making a whole lot of difference. And keeping in mind that Hyderabad is one of the places. Hyderabad is one of the places which is known in the world for IT, and you guys are doing such wonderful job to the Divyang Jan. It's simply incredible. It's simply incredible. Thank you for raising the humanity high. Thank you. Thank you, sir. We've been working in this area specifically because this is the most tribal area, backward area, and there are quite a lot of people who don't get the right resources, and disability being one of the major issues in the area. We thought be the best place, more like maybe. Because we've seen how each one gets into issues, and it's how difficult they find it to come out of a certain issue or a problem. And we have made a couple of interventions wherever possible and tried to bring up this one to the best possible ways in which we can help them. Brilliant. Simply brilliant. Excellent. So Kranti, we are very, very happy and excited that you are with us. You are working with us, and you know, we got to know about you and your organization. It's phenomenal. So
tell us if we can be of any help. We would be really glad if we could Definitely, extend kind of help. definitely. We'll reach out to you separately, sir, and we can work together. 100%, Kranti, and best of luck. Just Thank you, sir. always be positive the way you are. Just be the way you are, and I'm sure you're gonna at least change the entire Hyderabad, the Telangana and the Andhra region, because Yeah. it requires a lot of intervention. It requires a lot of support from the people. Yes. Like you. So thank you so much. Thank you so much. Exactly, sir. Thank you so much. Yeah. भावना जी, केशव जी, भावना आरके, आई डोंट नो हु इज आरके. गुड आफ्टरनून सर. नमस्ते भावना जी. सर मैं एक्चुअली मैं तो अपनी प्रॉब्लम लेकर आई हूँ कुछ. बोलिए ना. मेरे साथ सर ये है कि मेरे को ना फोन आया था सार्थक से जी. और क्या कहते हैं कि आपको जॉब के लिए भी हम वो करेंगे, ठीक है. और मैं MA BEd हूँ, डबल MA कर रखी है मैंने, सोशल वर्क में भी और हिंदी में भी की हुई है. जी. और CTET मेरा क्लियर है. जी. और क्या कहते हैं फिर उन्होंने मेरे को क्या करा, डिजिटल ट्रेनिंग दी है जी. 15 डेज की. और अब क्या हुआ, अब उसके बाद वो कहते हैं कि आपकी जॉब का कोई चांस नहीं है, मतलब जैसे कि डिजिटल ट्रेनिंग जो आपकी 3 मंथ्स की होती है उसमें देते हैं हम. अब ये बात तो हमें तो पता नहीं थी, तो हमने तो जो बोलेंगे तो हम तो वही लेंगे ना ट्रेनिंग. जी. जी. और 15 डेज की मैंने ट्रेनिंग ली. और अब जिसको भी बात करती हूँ तो वो यही कहता है कि आपने 15 डेज की आपको किसने बोला था लेने के लिए, और जी. आपको तो 3 मंथ्स की लेनी चाहिए थी कि 3 मंथ्स में जॉब लग जाती है. जैसे उसमें हम जॉब प्रेफर करते हैं, आपका इंटरव्यू क्लियर कराते हैं, ये चीज है. तो अब प्रॉब्लम मैम ये आ रही आपकी है. एज क्या है? सर मेरी age एज क्या है है? 33. 33. हाँ जी. तो फिर तो आपको सही कह रहा था जो भी कि वो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग में आना चाहिए था हमारे, जिसमें Yes, जॉब sir. लगती है. यस सर. अच्छा भावना जी, अभी एक चीज बताइए, कौन से सेंटर से आपने ट्रेनिंग ली? सर एक्चुअली मेरा ना दिल्ली में चल रहा होगा ये, तो मेरी मैरिज हो गई तो मैं फरीदाबाद आ गई हूँ, ठीक है. तो उन्होंने दिल्ली से ही मेरे को कनेक्ट कर दिया था. उन्होंने बोला कि आप दिल्ली से ही हो तो दिल्ली से ही आपको हम वहीं से जॉब दिला देंगे. और मैंने उनको ये बोला था कि चलो फरीदाबाद के आसपास कहीं मिल जाए तो मैं कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट फिर अब उन्होंने कुछ करा ही नहीं है कि मतलब. अच्छा, आप एक काम कीजिए, मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाला है, आप जी मुझे सर. रिज्यूमे व्हाट्सएप पे भेजिए. जी सर. मैं प्रयत्न करता हूं कि जहां पर भी ओपनिंग है कम से कम आपका इंटरव्यूज एक आदि कराऊं. फिर ईश्वर की मर्जी है कि आप उसको क्लियर कर पाती हैं कि नहीं. मैं प्रयत्न करता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ इंटरव्यू कर सकें. अगर नहीं होगा तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप अभी, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है वर्चुअल है, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको सेंटर आना है. अगर आप बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर रही हैं तो 3 महीने की, अगर मैं कोशिश करता हूं, अगर नहीं हो पाएगा जॉब में, क्योंकि जनरली जो एम्प्लॉयर्स हैं वो 3 महीने की ट्रेनिंग मांगते हैं. अब जिस भी कारणवश कम्युनिकेशन मिसगैप हुआ, कम्युनिकेशन में थोड़ा चैलेंज हुआ, जो भी कारण रहे, आप अगर कर सकें तो अपने आप को 3 महीने की जो ट्रेनिंग है उसमें अगर आप वर्चुअली भी एनरोल करेंगे, आपको आने जाने की भी जरूरत नहीं है. वर्चुअली मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वर्चुअली. जी सर. जी सर. हाँ, तो वैसे ही अगर आप करके कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग करेंगे तो आपके जो चांसेस हैं जॉब के और फिर जिंदगी भर जॉब के, वो ज्यादा बढ़ जाएंगे. ओके तो सर. आप पे निर्भर करता है, 3 महीने का दे करके आप अपनी जिंदगी को एक दूसरा रुख दे सकती हैं. मेरे को तो 2 मंथ्स हो गए कम से कम पीछे पड़े हुए. मैं सबको फोन कर चुकी हूँ. फिर एंड में आके मैंने रजत सर का नंबर मांगा था, तो उन्होंने ये बोला कि अभी तो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हम उनका नंबर नहीं दे सकते आपको. इसीलिए फिर मेरे सार्थक लाइक कर रखा है तो उस पर मेरे को आता रहता है. मैंने कहा चलो मैं आपसे ही बात करूंगी, पर्सनली बोलूंगी. इसीलिए कोई तकलीफ नहीं है. अनफॉर्चुनेटली जिसने भी वो कम्युनिकेट किया, शायद मिसकम्युनिकेशन हुआ. मैं ये दोनों काम करेंगे हम पैरेलली. तो आप अपने आप को ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर लें, और पैरेलली हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि इसको आपको हम कुछ इंटरव्यूज कराएं. उसके बाद देखते हैं, अगर आपकी जॉब इमीडिएटली लग गई इंटरव्यू क्रैक होने से तो अच्छा है, नहीं हुई तो आप ट्रेनिंग में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दें. क्योंकि वर्चुअल है तो आपको कोई जाना भी नहीं है, कहीं आना भी नहीं है, कोई ट्रैवल नहीं करना है, घर से ही काम शुरू हो जाएगा. जी सर. जी सर.
ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, तो आप मुझे अपना रिज्यूमे मेरे पे व्हाट्सएप कर दें और मैं दोनों काम इमीडिएटली शुरू करता हूँ। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और भावना जी, एक मेरी आपसे गुजारिश है, और भी कोई अगर दिव्यांगजन जिसको आप जानती हैं, जिसको चैलेंज है, प्रॉब्लम है, उसको आप इस फोरम में या किसी भी फोरम में लेकर के आए जिससे हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। द आइडिया, हमारा जो मकसद है, लोगों की दुविधाओं को, लोगों के चैलेंजेस को सॉल्व करना है। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। हमारे सिकंदर जी हैं, सिकंदर सिंह जी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, आपका कोई सवाल सिकंदर जी? जी सर, मेरा सवाल यही है कि जो दिव्यांग लोगों को हमने राशन दिया था, ठीक है, मैंने काम किया, बहुत अच्छा लगा, और कहीं कहीं तो इमोशनल होने की नौबत आई दिव्यांग लोग की स्थिति को देख करके, जिसका दोनों पैर हाथ नहीं है, सब चीज देख करके। और मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि सर, मैं अब रोड पर भी घूमता हूँ बाइक से या गाड़ी से, तो दिव्यांग को देखता हूँ तो गाड़ी रोक करके और उनका नंबर और एड्रेस लेने का प्रयास करता हूँ सर, ताकि मैं उनको किसी भी तरह से जो भी वो हेल्प कर सके सर। तो उसमें कुछ लोगों को ट्राईसाइकिल वगैरह का रिक्वायरमेंट आता है, ठीक है, और ट्रेनिंग का भी रिक्वायरमेंट आता है, तो मैं उसका डाटा बना रहा हूँ, जो डाटा आपको मैं सबमिट करूंगा। बहुत बढ़िया सिकंदर जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, उत्तम, बहुत उत्तम काम। तो अगर आपको इसी तरीके से आप लगे रहिए, आपको कोई भी सहायता हमारी तरफ से चाहिए, आपको याद कीजिए,